In the previous class, we have discussed about the boxes, and in this class, we will start from this topic, that is input buttons. Now, first is radio button. First button is called radio button. Radio buttons are used when you want the user to select one of the limited number of choices. That means you have two options, or maybe four options, or maybe five options, means limited numbers of options you have, then you have to select only one out of them. That time you have to use radio button. Just like, suppose that a question came like, are you male or female? So you have to choose only one, either male or female, that is your gender. So that time you have to use radio button. So radio button are used when you want the user to select one of the limited number of choices. Limited number of choices means sufficient options are given to you. Out of them you have to select only one option. Now, how will you create radio button? Again, radio button comes under input type, input element. So input type equals to radio. Here you have to write input type equals to radio. Once you write radio, that means it will generate radio button. And the name of the radio button is R1. Value equals to teacher, checked, then teacher. Now, through this, you can generate only one radio button. Clear? Like this. This is your first radio button. Now see here, this radio button, first radio button is checked. Checked means it is selected, and remaining two are not selected. Why? Because its default value is checked. Once checked is written here, that means this is selected by default. This is selected by default. Then teacher and teacher two times are written, where this teacher's T is capital, whereas this teacher's T is small. Now this is visible in the form. ठीक है, ये आपको फॉर्म में दिख रहा है. ठीक है, its T is capital, but when you select this option, then the value, this one teacher, will store in the database, or it will send to any kind of server like mail server, database server, or somewhere else. So means this is the value. Once you select this teacher, then this value will goes according to selection. आपने ये select किया है तो teacher जाएगा. If you select doctor, then the value doctor will store. If you select engineer, then the value engineer will store. But here, listen, name of all the radio button is same. Now here name equals to R1. Again, in the next one example, and next one radio button, the name equals to R1 and the name is equals to R1, because all three belongs to same category, that is called profession. That is called profession. ठीक है, either you choose teacher, or you choose doctor, or you choose engineer, according to that its name is same. ठीक है, क्योंकि देखो नाम हम अलग कर देंगे. सपोज दैट नेम ऑफ फर्स्ट टीचर इज R1 एंड सेकंड वन इज R2, थर्ड वन इज R3. तो इसका मीन्स क्या होगा कि हम पहले वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. बट here we need to select only one out of them. That's why we need to give same name to all the radio buttons. Here attributes are name, assign name to the radio button. Name का मतलब है name assign करना. Value, specify values that is to be returned to server if radio button is selected. ठीक है, देखो वैल्यू मैंने बताया था आपको. वैल्यू मीन्स ये टीचर लिखा है वैल्यू. जब आप इस टीचर को सेलेक्ट करते हो तो कौन सी वैल्यू सर्वर पर भेजेगा. ठीक है, सर्वर मीन्स यहाँ पर मेल सर्वर भी हो सकता है, सर्वर यहाँ पर डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, और कोई अदर सर्वर भी हो सकता है.
ठीक है. Now checked set the default value to the radio button. So this time teacher is selected by default because its value is checked. ये checked है तो ये by default ये select रहेगा. Now next is check boxes. Check boxes is almost same as radio button, but the difference is in radio button we select only one option at a time, whereas in check boxes we can select one or more option at a time. Means चेक बॉक्स में एक से ज्यादा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, whereas रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ऑप्शन एक बार में सेलेक्ट करते हैं. सी द डेफिनेशन. चेक बॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन यू वांट द यूजर टू सेलेक्ट वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस. ठीक है, जब आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करना चाहते हो, then you have to use check boxes. Clear? Now see here, the example is given, my hobbies. A student, a person or a child has maybe a single hobby or maybe more than one hobbies. Clear? So either your hobby is cricket, morning walk or yoga, or maybe all three. किसी की हॉबी होंगी तीनों, किसकी हॉबी सिर्फ इसमें से एक होगी. ठीक है, तो जब आप एक से ज्यादा में टिक लगाओगे तो आप उसको यूज करोगे क्या, रेडियो चेक बॉक्स. एक से ज्यादा के लिए चेक बॉक्स और सिंगल चूज करनी है तो रेडियो बटन. नाउ सी हियर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू C1, वैल्यू इक्वल्स टू क्रिकेट एंड देन क्रिकेट, लाइक दिस. देखो सेम जैसे पहले हमने पढ़ा था वैसा ही है. इनपुट देन टाइप चेक बॉक्स. पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो. रेडियो इज फॉर रेडियो बटन, चेक बॉक्स इज फॉर चेक बॉक्सेस. ठीक है, देन नेम इक्वल्स टू C1. एवरी कंट्रोल हैज देयर ओन नेम. हर सबका अपना अपना एक नाम होता है. तो हियर द नेम इज C1. वैल्यू इक्वल्स टू क्रिकेट एंड देन क्रिकेट. दिस क्रिकेट इज डिस्प्लेड इन द स्क्रीन. जो क्रिकेट है ये हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये जो क्रिकेट होगा, once you select any one option, according to that it will send या return value to the server. ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, सर्वर पर चली जाएगी. If you select cricket, then this cricket will store on the server. If you select morning walk, so see this morning walk will store on the server. Clear? ये जो morning walk स्मॉल में लिखा है ये सर्वर में सेलेक्ट हो जाएगा. Now input type equals to checkbox, name equals to C1, value equals to morning walk. Like similarly है. ठीक है, बट हियर योगा के बाद लिखा है चेक्ड. चेक्ड मीन्स दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. मीन्स आप इसमें से कोई भी चूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट योगा इज सेलेक्टेड. जब आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन तो चूज होगा जिसका नाम है योगा, बिकॉज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज चेक्ड. उसकी वैल्यू चेक्ड लगा रखी है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई. नाउ सी हियर, नेम एट्रीब्यूट्स आर नेम. नेम इज यूज्ड टू असाइन नेम टू checkbox. Value, the value to be returned to server whether checkbox is selected or not. जब आपने कोई checkbox select किया है तो वो वैल्यू सर्वर पे रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, नहीं सर क्या है तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी. Then checked set the default value to checkbox. checkbox की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए we have checked option. Okay, next one topic is pop-up box. Pop-up box. Pop-up box is also known as drop-down list. I think you all are familiar with this drop-down list. This type of list is called drop-down. This is the font size. ठीक है, once I click on this arrow button, now it will pop up. Pop up. और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाती है. ठीक है, अगेन सी पॉप अप और गायब. ठीक है, सिमिलरली पॉप अप गायब. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉप अप लिस्ट या पॉप अप बॉक्स. ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट. ड्रॉप डाउन क्यों, क्योंकि देखो जब मैं इस एरो में क्लिक करूंगा एक लिस्ट नीचे को आएगी. ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ गिरेगी, देखो आगे नीचे की तरफ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
drop down list. So either you say drop down list or pop-up box, both are same. Now how we will create this pop-up? See here, it allows the user to choose one item from the list. Listen, from the pop-up box, you can choose only one item from the list. See here in this example, if you want to choose any size of the font, so click on this drop down. Now I want to choose size 20, तो select 20. So only 20 is selected, not more than that. एक 20 select किया, 20, 22, 24 सब एक साथ नहीं आ गए, ठीक है. Now if you want to change it 42, now 42 size, ठीक है. तो एक टाइम पर एक ही ऑप्शन चूज हो रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज नहीं हो पा रहे. क्लियर. तो ये लिखा है इट अलाउ द यूजर टू चूज वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट. लिस्ट मतलब जो ओपन होके आ रही है, उस लिस्ट में से कोई एक ही आइटम चूज होगा एक बार में. दैट इज कॉल्ड पॉपअप बॉक्स. आफ्टर दैट, how we will create this pop-up box? For that we have select. For this we have select. Select name equals to favorite color and the size equals to 1. Then options. Options means these many are the options. Options are blue, red, yellow, green, black, orange, purple. These are the options. So see here, option blue, option red, option yellow, option green, option black, option orange, option purple. So these many are the option of this pop-up box. Now first blue is selected, so means this is the default value. ठीक है. देखो यहाँ पर भी बाकी कोई selected नहीं है, सिर्फ कौन सा selected है, blue selected है. So this is the default value of this pop-up box. Pop-up box की default value क्या है, यहाँ पर blue है. क्लियर. जैसे कि उससे ऊपर हमने पढ़ा था चेक बॉक्स और रेडियो बटन. चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए वी हैव चेक्ड वैल्यू थी वहां पर. यहाँ पर क्या है, सेलेक्टेड, क्योंकि यहाँ चेक नहीं लगा सकते हैं, टिक नहीं लगा सकते हैं, ना हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड होगा. ठीक है. देन एट्रीब्यूट्स आर सेलेक्ट. सेलेक्ट टेल्स द कंप्यूटर another form is going here. सेलेक्ट बता रहा है कि ये अनदर फॉर्म चल रहा है, कोई दूसरा फॉर्म चल रहा है जिसके अंदर भी सब पार्ट्स आएंगे. ठीक है. तो इसको हम या तो सेलेक्ट बोलेंगे या पॉपअप फॉर्म बोलेंगे. नेक्स्ट इज नेम. दिस इज द हेडिंग ऑफ द फॉर्म आइटम. फॉर्म आइटम का हेडिंग हो गया. लाइक देखो यहाँ पर ये फॉर्म आइटम्स, आइटम क्या है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन सब है. इसका हेडिंग क्या हो जाएगा, फेवरेट कलर. दैट्स व्हाई इट इज द नेम. तो ये लिखा है ना, दिस इज द हेडिंग ऑफ द फॉर्म आइटम. फॉर्म आइटम के जो नेम होंगे वो हेडिंग होंगे, वो नेम कहलाएगा. ठीक है. देन साइज. डिनोट द साइज ऑफ द बॉक्स. बॉक्स का साइज कितना बड़ा होगा, ये पॉपअप बॉक्स आ रहा है, इसका साइज कितना बड़ा होगा. ठीक है. तो हियर 1 मीन्स 1 लाइन. ठीक है. 1 मीन्स है 1 लाइन, एक लाइन का होगा. देन ऑप्शन. ऑप्शन में लिखा है डिनोट विच ऑप्शन will appear in the box. अब ये देखो सब में ऑप्शन लिखा है ना, ऑप्शन फिर ऑप्शन फिर ऑप्शन, तो मीन्स which option will visible inside the box. बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन विजिबल होंगे, that you decide by option property. Then selected option. अब selected option क्या कह रहा है, denote another choice that will be visible when you click ऑन द आइटम. ठीक है. जब आप किसी आइटम पर क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है. ठीक है. वो सेलेक्ट हो जाएगा. एंड देन क्लोज सेलेक्ट, दैट मींस फिनिशेस ऑफ द एंटायर डील. इसका मींस है ये जो सेलेक्ट करा है तो दैट मींस दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ सेलेक्ट. ये क्लोज हो गया सेलेक्ट का. ओके. Your next topic is buttons. The button tag defines a clickable button. Button का means क्या होता है, clickable button. ठीक है. Once you click on the button, it will submit your details to the server. ठीक है. That is called submit button. Submit button में जब आप क्लिक करते हो तो सारी डिटेल कहाँ जाती है, सर्वर पे चली जाती है. तो similar types of buttons we have. उसी की तरह बहुत सारे buttons होते हैं हमारे पास. ठीक है. देखते हैं. Inside a button element you can put content like
टेक्स्ट और इमेजेस। ठीक है, देखो inside a button element के अंदर you can put content means two types of content we have, one is text or second one is image. Here, see here two buttons we have, one is submit and second one is reset. One is submit and second one is reset. So submit and reset, these both are text, ये दोनों क्या है, टेक्स्ट हैं। ठीक है, सो ये इसका कंटेंट क्या होगा, टेक्स्ट हो गया। बट हियर ऑन द स्क्रीन लुक हियर, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है हमारा। लेकिन स्टार्ट बटन में स्टार्ट थोड़ी है, आइकन बन के आ रहा है, एक पिक्चर लग के आ रही है, इमेज लग के आ रही है। ठीक है, सो यू कैन प्लेस कंटेंट आइदर टेक्स्ट मैनर और एन इमेज मैनर। सी हियर, ये देखो ये बटन है मेरा, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन में इमेज लग के आ रही है, ना कि स्टार्ट लिख के आ रहा है। देखो स्टार्ट में स्टार्ट बटन बन के आ रहा है, ठीक है, इमेज लग के आ रही है। ठीक है, तो ये लिखा है इनसाइड अ बटन एलिमेंट यू कैन पुट कंटेंट लाइक टेक्स्ट और इमेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड buttons created with input element. Always specify the type attribute for a button element. ठीक है, बटन एलिमेंट के लिए आपको हमेशा टाइप एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप दे रहे थे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन ओनली योर बटन विल क्रिएटेड। ठीक है, और या आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, दैट मीन्स दिस इज सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, दैट मीन्स दिस इज रीसेट बटन। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सी हियर एग्जांपल, जैसे लिखा है देखो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, दैट दिस मींस इट इज सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट, वैल्यू इक्वल्स टू रीसेट, दैट मींस दिस इज रीसेट बटन। तो आपको टाइप बताना पड़ेगा, वो कह रहा है टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप का ये बटन है। ठीक है, नाउ सी हियर सेंड और रीसेट बटन। सेंड और रीसेट बटन, सेंड मींस सबमिट, रीसेट तो रीसेट होता है। रीसेट का मींस है कि जब आपने संजीव ठाकुर लिखा हुआ है, आप रीसेट पे क्लिक कर दोगे तो बोथ द बॉक्स विल एम्प्टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। इसमें संजीव ठाकुर जो लिखा हुआ है ये गायब हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव प्लेस्ड ऑल द फॉर्म आइटम्स यू वांट ऑन योर page. You need a way to have the result sent to your email box. So this may be the easiest of all the items. ठीक है, ये कह रहा है कि मान लो आपने सारा फॉर्म आइटम प्लेस कर दिया फॉर्म पर, अब आप चाहते हो कि जो रिजल्ट है वो हमारे ईमेल बॉक्स में चले जाए, एक बार में ईमेल बॉक्स में चले जाए या सर्वर में चले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन्स क्रिएट करेंगे। तो दिस इज द इजीएस्ट मैनर टू सेंड ऑल द डिटेल एट वंस, एक बार में सारा डिटेल भेजने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है। ठीक है, नाउ image, image button is used to define image as a submit button। देखो सबमिट बटन में इमेज लग के आ जाएगी, ये इमेज लगी हुई है, ये बटन में इमेज लग के आ जाएगी, यहाँ पर सबमिट लिख के नहीं आएगा। तो इमेज बटन मीन्स बटन होगा लेकिन उस पर इमेज लगी होगी, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा। ठीक है, हाउ विल यू क्रिएट इमेज, हियर HTML हेड टाइटल प्राची, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। देखो जो प्राची है यहाँ पर टाइटल में लिख के आ गया, आपको दिख रहा होगा ये प्राची लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज द टाइटल। देन body start, after that form start, p equals to align, p align equals center, that means this image will appear at the center, ये है वो सेंटर पे आएगा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, दैट मींस दिस इज इमेज बटन। देखो यहाँ पर इनपुट टाइप को सबमिट नहीं लिखा है, इनपुट टाइप को रीसेट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, दिस मींस इट इज इमेज बटन। देन नेम इक्वल टू img src सोर्स ऑफ द पिक्चर, सोर्स ऑफ द पिक्चर मींस वेयर दिस पिक्चर इज लोकेटेड। तो ये जो पिक्चर है ये इनके बुक वालों के डी ड्राइव में कंप्यूटर 2012 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ब्राउज द वर्ल्ड नाम का फोल्डर है, फिर ब्राउज द वर्ल्ड 8 नाम का फोल्डर है। इनसाइड दैट देयर इज अ पिक्चर, इट्स नेम इज प्राची लोगो डॉट gif, वहां से इसने ये पिक्चर पिक करी है। ठीक है, एंड देन रिमेनिंग थिंग्स आर अलाइन इक्वल टू बॉटम, हाइट और विड्थ सेट कर दी है, एंड देन ALT click on it,
ALT, click on it. That means ALT is called alternate text. ALT, full form of ALT is alternate text. That means if picture is not visible on the screen, then this message will appear. जब पिक्चर नहीं दिखेगी तो that time this message will appear. But if picture is appear on the screen, then this message will not. That's why it is called alternate. Alternate means either picture will visible or this text will visible. Clear? And then some attributes SRC, that is called source, name of the image file. Okay. Then align means position of the image according to test. Then value means either left side, bottom, top, right, where you want to place. Then border, width of the border around the image के चारों border लगाना है आपने. Height of the image, width of the image. और ALT मैंने बता दिया. Display alternate if image is not available. Not available means if it is not visible.